اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آخری 4 آیات کا ترجمہ کریں گے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ والذین، واو یہ کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور کے لیے، شب و روز، لیل و نہار۔ الذین، وہ سب لوگ، مذکر جمع مذکر کے لیے، الذین وہ سب لوگ، یقولون، یقولون میں یا جمع قول اور جمع واو نون، واو الف، واو نون اور یا نون ہمیں پتہ ہے کہ جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا، تا، الف، نون یہ مضارع کی علامات ہیں۔ یہاں جب بھی آئے گا تو اس کا معنی ہوگا وہ، تا تم یا آپ، الف میں اور نون ہم۔ مضارع کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کرنا ہے۔ والذین، اور وہ سب لوگ، وہ کون لوگ؟ عباد الرحمن، یقولون وہ سب کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، ربنا، ربنا میں رب جمع نون الف نا، ہمیں پتہ ہے کہ نون الف نا کا مطلب ہے ہمارا یا ہمارے، اور چھوٹی یہ اگر ہوگی آخر میں تو اس کا مطلب ہوگا میرا یا میری۔ ربنا اے ہمارے رب، اب یقولون میں وہ کہتے ہیں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ رب سے، تو یہاں پہ ہوگا وہ دعا کرتے ہیں، وہ التجا کرتے ہیں، کیونکہ مخلوق جب خالق سے مخاطب ہے تو وہ التجا کرتی ہے، وہ دعا کرتی ہے۔ اور وہ سب لوگ عباد الرحمن وہ مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب، حب ہم اردو میں کلمہ استعمال کرتے ہیں ہبہ کر دینا، یعنی تحفے میں دے دینا، تو عطا کر دے۔ ربنا اے ہمارے رب، حب عطا کر دیجئے، عطا لنا، لنا میں لام جمع نون الفنا، نون الفنا ہمیں پتہ ہے ہمارے کے لیے ہے، اور لام کے لیے، لام 2 حالتوں میں آتا ہے، لام کے لیے اور لام یقیناً۔ لام تعلیل کہتے ہیں کے لیے جب آتا ہے، اور لام لازم جب یقیناً کے معنوں میں آتا ہے۔ یہاں پہ کے لیے، ہمارے لیے، من سے 1.5 میں ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یہ کلمہ۔ ازواجنا، ازواجنا میں ازواج اور نون الفنا، نون الفنا ہمیں پتہ ہے ہمارے کے لیے ہوتا ہے استعمال، اور ازواج زوج، زوجہ ہم اردو میں یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب عربی میں ازواج کا لفظ آتا ہے تو وہ شریک حیات کے لیے ہوتا ہے، شریک سفر کے لیے، یعنی عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت۔ من ازواجنا ہماری ازواج کو، ہماری زوج کو، ہمارے شریک سفر کو، وذریتنا و اور ذریت، ذریت یہ کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذریت آدم، یعنی اولاد آدم، ذریت، تو ذریت جمع نون الفنا، نون الفنا ہمارے کے لیے، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کو کیا بنا دے؟
कुर्रता, कुर्रता, कुर्रता आयुन, आयुन ऐनक से, ऐन आँखें, और कुर्रा ठंडक। ये हम एक नाम भी है कुर्रतुल ऐन। कुर्रतुल ऐन क्या मतलब? आँखों की ठंडक, आँखों की ताजगी। कुर्रत ठंडक और आयुन आँखें, आँखों की ठंडक। वजअलना और बना दे हमारे लिए, जाला बनाया, उसने बनाया, जालना हमारे लिए बना दे। अलिफ है अमर के लिए, खालिक से अमर नहीं होगा बल्कि इल्तिजा होगी, दुआ होगी। वजअलना और हमारे लिए बना दे, और हमें बना दे, लिलमुत्तकीन, लिल के लिए, और मुत्तकीन, मुत्तकीन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कलमा मुत्तकी, परहेजगार। और यानून, यानून किसके लिए है? जमा बनाने के लिए। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए। इमामा, इमाम, इमाम पेशवा। तो ये इबादुर रहमान दुआ मांग रहे हैं, दोबारा से दोहराई करते हैं। वल्लज़ीना और वो सब लोग, यक़ूलूना वो सब मांगते हैं, रब्बना है हमारे रब, हबलना अता कर दीजिए हमारे लिए, मिन से, अज़वाजिना हमारी अज़वाज को, वज़ुर्रियतिना और हमारी औलाद को, कुर्रत आयुन आँखों की ठंडक बना दीजिए। वजअलना और हमें बना दीजिए, लिलमुत्तकीन इमामा मुत्तकीन का इमाम, मुत्तकीन का पेशवा। अगली आयत पे चलते हैं। उलाइका युजज़ौना, उलाइका 1.5 में है, बार बार रिपीट होते हैं। वो सब लोग, युजज़ौना, युजज़ौना में या जमा जज, जज़ा हम उर्दू में ये कलमा इस्तेमाल करते हैं। और वाउनून, वाउनून हमें पता है, वाव अलिफ, वाउनून और यानून जमा बनाने के लिए है। या, ता, अलिफ, नून ये मुसारे बनाने के लिए है। वो, तुम, अलिफ, में, हम। मुज़ारे का मतलब है, इसका तर्जमा हाल या मुस्तकबिल में करना है। उलाइका यही वो लोग हैं, युजज़ौना, युजज़ौना वो जज़ा पाएंगे, वो सब जज़ा पाएंगे, उन सबको जज़ा मिलेगी। कहाँ पे? अल-गुरफ़ता, गुरफ़ता अरबी में बाला खाने को कहते हैं, जन्नत, बाला खाना। ये वो सब लोग हैं जो जज़ा पाएंगे गुरफ़ता बाला खाने में, बाला खाने में। बिमा किस वजह से? जिसके सबब, जो भी उन्होंने किया, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? सबरू, जो उन्होंने सबर किया, सबर किया, उन सब ने सबर किया। यहाँ पे मुज़ारे की कोई अलामत नहीं है, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो सबर करते हैं या सबर करेंगे, हम कहेंगे उन्होंने सबर किया माजी में, जिसके सबब उन्होंने सबर किया। वयुलक्कौना, वा और युलक्कौना या जमा लक, जमा वाउनून, वाउनून हमें पता है जमा बनाने के लिए। या वो मुज़ारे की अलामत है। लक, लका, यल्का मुलाकात हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मिलना। और वो सब मिलेंगे, फीहा, फीहा में फी और हा, हा किसके लिए है? हु, हा, हुमा, हम और हुन्ना गायब के लिए है, और गायब मुन्नस के लिए हा इस्तेमाल होता है। अब हा क्या है यहाँ पे? मुन्नस क्या है? गुरफा, बाला खाना, जन्नत।
फीहा उसमें, तहियतन तहियतन आदाब, आदाब के साथ, तस्लीमात के साथ, वसलामा और सलाम पेश किया जाएगा उन्हें। कैसे उनसे मुलाकात होगी? वयुलक्कौना फ़ीहा, उनके साथ मुलाकात होगी, फ़ीहा इसमें, तहियतम व सलामा, आदाब व तस्लीमात के साथ सलाम दिया जाएगा उन्हें। उलाइका यही वो लोग हैं, युजज़ौना वो जज़ा पाएंगे, अलगुरफ़ता गुरफ़ा में, बाला खाने में, जन्नत में, बिमा जिसके सबब, सबरू उन्होंने सब्र किया, वयुलक्कौना और वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, फ़ीहा इसमें, तहियतन तहिया आदाब व तस्लीमात व सलामा और सलाम पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे इशारा मलाइका की तरफ भी है और अपने जो अजीज़ व अकारब रिश्तेदार जो जन्नत में जिनको देखेंगे उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है। ये दोनों उलमा इसमें दोनों तरफ का इशारा बताते हैं कि आदाब व तस्लीमात के साथ उन्हें सलाम पेश किया जाएगा। अगली आयत पे चलते हैं। खालिदीन फीहा, खालिद हमें पता है इसका मतलब है हमेशा रहने वाला, खालिद नाम भी है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। और यानून, यानून जमा बनाने के लिए है, वाव अलिफ वाव नून, यानून जमा बनाने के लिए। खालिदीना वो सब हमेशा रहेंगे, फी हा इसमें, फी में, हा उसमें, उसमें किसमें? जन्नत में। हसनत, हसनत, हसनत उसवाए हसना, ये उर्दू में हम कलमा इस्तेमाल करते हैं, क्या ही अच्छा, बहुत अच्छा। हसनत मुस्तक़र्रन, मुस्तक़र ये भी कलमा उर्दू में इस्तेमाल होता है, आर्जी ठिकाने के लिए मुस्तक़र का कलमा इस्तेमाल किया जाता है। व मुकामा और मुकामा मुस्तकिल रहने की जगह, जब मुस्तक़र के साथ मुकामा आ गया तो ये आर्जी ठिकाना या हमेशा की रहने की जगह, हमेशा मुकाम। खालिदीन फीहा वो उसमें हमेशा रहेंगे, हसनत क्या ही अच्छा है, मुस्तक़र्रन ये आर्जी ठिकाना, व मुकामा या हमेशा हमेशा के रहने की जगह, यानी कि उस जगह की अच्छाई को बयान करने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वहाँ थोड़ी देर के लिए रहना हो या हमेशा रहना हो, वो इतनी अच्छी जगह है कि उसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी रहना हो तो फिर भी बहुत अच्छा है। खालिदीन फीहा इसमें हमेशा रहेंगे, हसनत क्या ही अच्छा है वो, मुस्तक़र्रन आर्जी ठिकाना हो, व मकामा और हमेशा हमेशा के रहने की जगह। अगली आयत पे चलते हैं। कुल मा यअबऊ, कुल अमर है, कह दीजिए, फरमा दीजिए, माँ, माँ मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं के मानों में इस्तेमाल होगा। माँ के हमने कितने मानी पढ़े हैं? क्या, माँ, नहीं, माँ, कैसा, माँ, कितना, ये माँ के मानी हैं। और कुल मा या बहू फरमा दीजिए, कह दीजिए, नहीं, या बहू में या वो इबा और वाव अलिफ, वाव अलिफ हमें पता है जमा बनाने के लिए है, वाव अलिफ वाव नून और या नून, और या मतलब वो मुजारे बनाने के लिए है। या बाऊ एबा, एबा कहते हैं परवाह को। फरमा दीजिए नहीं वो परवाह करता, नहीं उसे कोई परवाह, अबू या अबू नहीं उसे कोई परवाह, बिकुम, बिकुम तुम सब की, बा के साथ के मुताल्लिक
सबब और कुम तुम सब की, तुम 3 या 3 से ज्यादा के, का, की, कुमा, कुम और कुन्ना ये मुखातिब की अलामत है, और कुम 3 या 3 से ज्यादा मुज़क्कर की। कुल मा यअबऊ नहीं वो परवाह करता तुम्हारी, रब्बी, रब्बी, रब्बी में क्या है, रब जमा छोटी ये। अब तक हमने पढ़ा है रब जमा नून अलिफ ना, हमारे रब, ये मेरा रब, क्योंकि फरमा दीजिए किसको कहा जा रहा है, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुल मा यअबऊ कह दीजिए, मा यअबऊ नहीं वो परवाह करता, बिकुम तुम्हारी, रब्बी मेरा रब, लो अगर, ला नहीं, ये 1.5 में है लो, ला उर्दू में कलमा इस्तेमाल होता है, दुआउकुम अगर तुम सब दुआ ना करो, मत पुकारो उसे, रब्बी मेरा रब, लो अगर, ला दुआउकुम नहीं तुम सब पुकारते हो, दुआ पुकारना, और कुम तुम सब 3 या 3 से ज्यादा, अगर तुम उसको नहीं पुकारते हो तो उसे कोई परवाह नहीं है, वो बेनियाज है। फ़क़द, फ़ा बस, क़द यकीनन, लक़द हो या क़द हो इसका मतलब है यकीनन या बेशक। फ़क़द बस यकीनन, कज़्ज़बतुम, कज़्ज़ब किज़ाब हम ये कलमा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कज़्ज़ब और जमा तुम 3 या 3 से ज्यादा, कज़्ज़बतुम तुम झुठला चुके हो, फसौफा, फसौफा 1.5 में है, बार बार रिपीट होता है, अनकरीब, पस अनकरीब, सौफा अनकरीब, फा पस, पस अनकरीब, यकूनु तुम सब होगे, तुम सब होगे, लिजामा, लिजामा लाजिम से, यानी कि तुम पे जो अजाब है वो लाजिम होगा, और वो अजाब भी कैसा, जो चिमिटने वाला अजाब होगा। किन लोगों को कहा जा रहा है, जो कहते हैं कि हम पुकारेंगे नहीं, जो जिन्होंने झुठला दिया अपने रब को। दोबारा से इसकी दोहराई करते हैं, कुल मा यअबऊ कह दीजिए, फरमा दीजिए, नहीं यअबऊ वो परवाह करता, बिकुम तुम सबकी, रब्बी मेरा रब, लो अगर, ला दुआउकुम नहीं तुम पुकारते हो उसे, फ़क़द पस यकीनन, कज़्ज़बतुम अगर तुम झुठला चुके हो, फसौफा पस अनकरीब, यकूनु वो होंगे, लिजामा लाजिम होगा उन पे अजाब, उनको अजाब उन पे लाजिम हो जाएगा, चिमटने वाला अजाब लाजिम हो जाएगा, जिससे वो कोई छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। लिजामा लाजिम से है, और ये चिमटने वाला जिससे छुटकारा मुमकिन ही ना हो। अगर अब इसमें हम देखें कि उर्दू के कितने अल्फाज जो हम अपनी रोज़मर्रा की उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो कौल, कुल ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कौल कहना, बा, रब, ला, दुआ, कज़्ज़ब और कूनू, काना और लाजिम, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। खालिद हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़ी, हसना, मुस्तफ़र व मकाम, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। युजज़ौना में जज़ा, बा, सबर, मुलाकात, वा, फ़ी और वा और सलाम, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वा, कौल, रब, हिबा करना, अज़वाज, वा, ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत आदम,
क़ुर्रा ठंडक, आइन ऐनक से, वा जआला बनाया, और मुत्तकी और इमाम। ये वो तमाम कलमे हैं जो हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 42 आयात का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे आज के कोर्स से, आज की लेक्चर से मुताल्लिक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे चैट पे बता सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट पे मुझे बता सकते हैं या रेज हैंड कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इस आज की कोर्स मुकम्मल होने पे एक तो आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप उस जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया था अल्लाह के नबी की एक हदीस का, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, उसमें से आप जो सीखने वाले उसमें आप लोग सब शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस कोर्स के मुकम्मल होने पे अगर आप ये समझते हैं और इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे कि जब आप कुरान का तर्जमा करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। फिर हमारी एक चीज़ है जो कि इसमें रह गई है, वो है डिक्शनरी का इस्तेमाल। कि जो 0.5% अरबी के जो माखज़ है, जो रूट वर्ड्स हैं, उनको अगर हमें देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे डिक्शनरी में से। जो 0.5% हमने शुरू में बात की थी, जो अल्फाज हैं उनको देखने के लिए, तो वो हम इंशाल्लाह उस पे एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें आप डिक्शनरी से देख सकेंगे उन अल्फाज को, ताकि आप फिर उसके बाद ख़ुद से कुरान का तर्जुमा कर सकें। अब हम एक दुआ के साथ इस कोर्स का इख्तिताम करेंगे और आज की क्लास का। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, कुरान को हमारी आँखों का नूर बना दे, कुरान को हमारे दिलों का सुरूर बना दे, कुरान को हमारे दुखों का मदावा बना दे, कुरान को हमारे गमों का इलाज बना दे, कुरान को हमारी सारी ज़िंदगी का साथी बना दे, कुरान को हमारे वक्त ऐश का साथी बना दे, कुरान को हमारे वक्त तैश का साथी बना दे, कुरान को हमारी मौत का साथी बना दे, कुरान को हमारी शिफात करने वाला बना दे, कुरान से हमें शिफा लेने वाला बना दे, कुरान को समझकर ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इसको 2 मिनट हैं हमारे पास मज़ीद, तो मैं इस पे थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मेरे पास मैंने जो कुछ सीखा इसमें मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। अब यही काम आप लोगों के भी ज़िम्मे है। आपने भी इस सिलसिले को यहाँ पे रोकना नहीं है। आपने अगर इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है तो इसको आगे बढ़ाना है। और शुरू में मुश्किल लगेगा, ये हमारे लिए समझना इतना आसान नहीं है। हम अभी तक उसी माइंडसेट में हैं कि नहीं, हम कुरान को नहीं समझ सकते ख़ुद से, ये बहुत मुश्किल है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको नसीहत के लिए आसान बनाया है। हमारे दिल अगर हदायत की तरफ हैं तो हमें इसकी समझ आना मुश्किल नहीं है। आपने इस सिलसिले को यहाँ पे रोकना नहीं है। आपने किसी एक बंदे को कम अज़ कम अपने आप से वादा कीजिए कि ये आगे ज़रूर सिखाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।